Hello students, so welcome you again with the next chapter of P3. So in P2 and P1 we have discussed chapter 8 and 9, motion and the force. So the chapter 10 is the application of motion and force. So in chapter 8 and 9 we have learned about motion of the object and force, and due to that force the changes in the speed and direction of the body. Clear? So in this chapter number 9 we have to discuss about the gravitational force, or simply the gravitation. So it is your physics chapter number 10, gravitation. So what is gravitation? What is the role of gravitation? In this chapter we have to discuss. So first of all, you have to see the video carefully and listen carefully and prepare summary of that. Clear? So now if we see the motion of the planet around the sun and the satellite around the planet, so these all motion are considered a circulatory motion, कि वो circular motion हमने मानना है उनको. Clear? And also Newton first law of motion, Newton second law of motion, कि these all planet and satellite revolving around the planet revolve around the sun and satellite around the planet. So if these are revolving around sun and the planets, so they require a force. So what is that force due to which these planet revolve around the sun and satellite revolve around the planet? So what is that force? So this we have to discuss. First of all, if we consider that कि the motion of the planet around the sun is circular, so we will take an activity कि मैं लेता हूँ एक थ्रेड, उस थ्रेड से मैंने एक स्टोन को टाई किया एंड दैट स्टोन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ. क्लियर? ये स्टोन आपका थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा, फिर ये यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा और फिर ये यहाँ पे होगा. मीन्स दैट स्टोन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड दिस पॉइंट. सो किसी टाइम पे अगर ये स्ट्रिंग को मैं छोड़ दूं, यह स्ट्रिंग टूट जाए, सो दैट स्टोन स्टार्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. अगर यहाँ से टूटेगी तो यहाँ जाएगा, यहाँ से टूटेगी तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से पॉइंट पे स्ट्रिंग टूटेगी तो ये ऐसे रिमूव करेगा. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक फोर्स है, देयर इज अ फोर्स ड्यू टू विच दैट stone is moving in a circular path. If that force is removed, अगर इस फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं, so that stone is start moving in straight line. Similarly कि जो अर्थ है और जो प्लेनेट है that are revolving around the sun, so वहां पे भी एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से सभी के सभी प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं. इफ दैट फोर्स इज रिमूव्ड और इफ दैट फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, देन ऑल द प्लैनेट स्टार्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन. सो व्हाट इज दैट फोर्स? सो एवरी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. वो आपका किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. And that centripetal force is provided by the gravitational force. That centripetal force is provided by the gravitational force. Means जितने भी planet हैं और जो सन के अराउंड घूम रहे हैं और जितने भी सैटेलाइट हैं जो आपके planets के अराउंड घूम रहे हैं, that is due to the centripetal force, and that centripetal force is provided by the gravitational force. तो ये आपका पॉइंट आ गया कि what is gravitational force. What is centripetal force? The force which act toward the center and due to which the object describe a circular path, कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं.
अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट करेगा मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। सो अब पॉइंट आता है कि जितनी भी चीजें हैं जो सर्कुलर पाथ में घूम रही हैं किसी भी फिक्स पॉइंट के अराउंड, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रही है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, पहला पॉइंट आता है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग होगी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये आपका आता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, हियर कम्स आउट टू बी ग्रेविटेशनल। सो व्हाट इज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस वी हैव डिफाइंड हियर नाउ। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, between the two objects or particle. The gravitational force is the force of attraction between the two object or two particle in the universe. So what is gravitational force? ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में या किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में जो इस यूनिवर्स के अंदर है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी की वजह से आपके जो प्लैनेट है, जो अर्थ है और जो अदर थिंग्स हम अराउंड है दैट आर इन द एग्जिस्टिंग इन द नेचर, इफ दैट फोर्स इज रिमूव्ड सो वी कैन से दैट कि द वेरियस फिनोमेना दैट अकर अराउंड अस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज योर डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी के बेसिस पे आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द न्यूटन, जो न्यूटन ने दिया था कि वो क्या है और वो जो ये फोर्स है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। दिस थिंग इज एक्सप्लेन बाय द न्यूटन। सो जो नेक्स्ट आपका होगा दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जो नेक्स्ट था वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड ऑन द वेरियस क्वांटिटीज। सो दिस इज एक्सप्लेन बाय द न्यूटन। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल law of gravitation or Newton's law of gravitation. So Newton described this law and on which factor this force depends is explained by the Newton. So first of all, if there is two object, this is object first, clear, its mass is m1, this is object A, and this is another object, its mass is m2 and its name is B, and this is the center of the two object, ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर है और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर है। The distance between the center of these two object is r, clear. So the Newton state that the force of attraction between these two object or the force of gravitation between these two object depend on the two quantities. The first quantity state that the force of gravitation or force of attraction between these two objects is directly proportional to the product of the masses of the two objects. So ये आपके की फर्स्ट इक्वेशन। सो न्यूटन ने कहा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा वो इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा and this force is inversely proportional to the square of the distance between the two object। और दूसरा पॉइंट उसने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो आफ्टर दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट हियर कि F इज proportional to m1 m2 divide by r square.
सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस दैट कि ये जो पर्सनैलिटी साइन होता है इसको हम नहीं रखते, इसको हमें रिमूव करना होता है, और टू रिमूव इट वी विल मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट। सो अब यहाँ पे क्या होगा आपका कि दिस f कैन बी रिटन एज g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब जो ये g आया यहाँ पे ये आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज g? g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये g जो आपका है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मींस ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, मींस इसकी वैल्यू फिक्स है विच विल बी यूज इन द न्यूमेरिकल पोर्शन कि व्हाट इज इट्स वैल्यू। So its value is fixed and its value is 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मीन्स इसकी वैल्यू फिक्स होती है एवरी टाइम, इट्स वैल्यू इज फिक्स, मीन्स ये कांस्टेंट है। और इस लॉ को यूनिवर्सल नाम क्यों दिया गया? बिकॉज दिस लॉ इज एप्लीकेबल ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, दैट्स वाई दैट लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके बाद यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो आपका छोटा है या बड़ा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा, उनके मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा ही करेगा वो। तो वाई दिस लॉ इज स्टेट दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हर एक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, हर एक साइज के लिए एप्लीकेबल है, हर एक जगह पे एप्लीकेबल है, ऑल टाइम है, आज भी होगा, कल भी होगा और परसों भी होगा। सो दैट्स वाई दिस लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफाइन द जी। अब इस g को हमने डिफाइन करना है कि ये g क्या होगा। अब हम इस g को देखते हैं कि व्हाट इज दैट g। क्लियर? तो अब हम यहां से g की वैल्यू फाइंड करेंगे कि g क्या होगा। अब हमें पता है कि जो आपका f था वो आपका था g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। So to find the g, we will take all these quantity which is on the right hand side to the left hand side. So it comes out to be f into में r square divide by m1 into में m2 is equal to g. अब हमने g को डिफाइन करना है। क्लियर? अब g को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक साइड में डायग्राम बनाता हूँ कि डिफाइंड g। अब g क्या है उसको हम डिफाइन करेंगे। अब g को डिफाइन करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं हम, वो क्या पॉइंट है उसको देखते हैं हम क्या पॉइंट है वो। सो जी को डिफाइन करेंगे, वी से दैट कि देयर इज टू ऑब्जेक्ट, ये कोई पहला ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये ए है और ये है बी। इसका मास है 1 kg और इसका मास भी है 1 kg एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो इन सभी वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा f की अंदर, तो f हमारा था दैट इज g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। सो व्हेन वी विल पुट ऑल दिस वैल्यू, m भी 1 है, m2 भी 1 है, m1 1 है, r 1 है, सो दिस f कम्स आउट टू बी g। अब व्हाट इज g? सो g और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg each and separated by a distance। कि जो फोर्स g क्या है आपका? इट इज अ फोर्स, g है, इट इज अ फोर्स बिटवीन, इट इज अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ mass 1 kg each and separated. So what is g? So g is the force between the two objects of mass 1 kg each when separated by a distance of 1 meter. So this is the definition of g. Now here we also can find the unit of g. अब g की यूनिट कहाँ से निकाल लेंगे? ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो g आपका है दैट इज f इंटू में r स्क्वायर डिवाइड बाय m इंटू m।
So we all know that the force is measured in Newton. R is the distance, it is measured in meter. So here comes out to be meter, but यहाँ पे R का क्या है, स्केयर है, divide by M1 that is also measured in kg and into में kg. So what is the unit of G? The unit of G की यूनिट क्या होगी? द यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा था. सो जो G है एक फिक्स वैल्यू है और इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. किस किस पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे डिपेंड करता है. सो नेक्स्ट वी विल सी what are the application and what are the characteristics of gravitational force. Now we discuss the characteristics of gravitational force. What are the characteristics of gravitational force? Clear? So first of all, this force does not need any contact between the bodies. मीन्स इस फोर्स के लिए किन्हीं भी दो बॉडी का आपस में कंटेक्ट जरूरी नहीं है. मीन्स इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स. कंटेक्ट का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स. क्लियर? नेक्स्ट, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. कि ये जो फोर्स है आपका इनवर्स स्क्वायर ओबे लॉ करता है. इनवर्स स्क्वायर का मतलब है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. मीन्स ये जो है फोर्स ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगा, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, एक्शन रिएक्शन पेयर मीन्स दैट फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर. अब पेयर का मतलब है कि ये कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, इस सेकंड ऑब्जेक्ट को फोर्स F1 से अपनी तरफ खींच रहा था, और सिमिलरली जो सेकंड ऑब्जेक्ट था इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा था विद फोर्स F2. क्लियर? अब इसका मतलब यह है कि दीज टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स. सेम फोर्स मतलब कि जो F1 है और जो F2 है, इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम. फॉर एग्जांपल ये भी 5 न्यूटन है और ये भी आपका क्या है, 5 न्यूटन है, बट इन दोनों फोर्स की जो एक्शन ऑफ डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी. अपोजिट का मतलब क्या, कि अगर इस फोर्स की डायरेक्शन F1 की डायरेक्शन ये है तो जो F2 की डायरेक्शन होगी ये होगी. मीन्स दीज टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. It doesn't need any contact between the body. It obey inverse square law and it act in action-reaction pair. So these are the characteristics of gravitational force. Now we will discuss the application of gravitational force. In the starting the chapter, we also discussed that the motion of the planet around the sun and the motion of the satellite around the planet is due to the gravitational force. कि अगर gravitational force नहीं होगा तो जितने प्लैनेट हैं और जितने भी सैटेलाइट हैं दैट स्टार्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन. सेकंड पॉइंट, रेनफॉल एंड द स्नोफॉल. कि जितनी भी रेनफॉल होती है द रेन ड्रॉप फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ सरफेस, दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रेन ड्रॉप्स एंड द अर्थ. द टाइड्स इन द ओशंस, की जो ओशन में आपकी टाइड्स आती हैं, दैट इज आल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स. द टाइड इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द मून एंड द सी वाटर. एंड ऑल्सो वी वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि जो हम अर्थ के सरफेस पे वॉक करते हैं दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स. कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा देन वी आर नॉट एबल टू वॉक ऑन द अर्थ सरफेस. सो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स. अब इसके बाद आपके लिए एक दो एप्लीकेशन मैंने छोड़ दी है, वो एप्लीकेशन आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि दिस कैन बी आल्सो बी द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स. क्लियर? सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, फ्री फॉल. द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल मीन्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन, फर्स्ट वी विल रिकॉल द डेफिनेशन, देन आफ्टरवर्ड वी विल explain it. What is free fall? Free fall means motion of the object toward the earth
surface due to the gravitational pull of the earth is called free fall. फ्री फॉल मीन्स क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, आफ्टर अटेनिंग सम हाइट दैट ऑब्जेक्ट अगेन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द अर्थ सरफेस, सो दैट पोजीशन इज सेड टू बी फ्री फॉल. उस पोजीशन को हम कहेंगे फ्री फॉल. अब फ्री फॉल क्या है? द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टूवर्ड द अर्थ सरफेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल. मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर गया है वो आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल. अब इस फ्री फॉल से एक नई डेफिनेशन आएगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब वो आपकी क्या है उसको हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब इसको हमने डिस्कस करना है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी क्या है. व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सो इट इज अ एक्सेलरेशन, it is the acceleration with which, or we can say that the acceleration with which a object moving toward earth surface due to the earth gravitational pull is called acceleration due to gravity. It is denoted by g. इसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं. अभी हमने क्या आपको कहा कि क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. प्रीवियसली हमने कहा था कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इन, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया. क्लियर? आफ्टर अटेनिंग अ मैक्सिमम हाइट इट स्टार्ट मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे फ्री फॉल. क्लियर? और जिस एक्सेलरेशन के साथ ये फ्री फॉल करेगा, मीन्स जिस एक्सेलरेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज रिप्रेजेंट बाय जी. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस और ड्राइव द डेरिवेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो नाउ we'll drive the derivation for acceleration due to gravity. So first we will consider here, let an object of mass small m is moving toward earth surface, clear, with acceleration due to gravity g. Let we say that the mass of earth is कैपिटल M. ये हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, वो अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहा है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और जो अर्थ का मास है वो कैपिटल M है. सो वी नो दैट कि एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपकी अर्थ है. क्लियर? ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है. तो ये एक ऑब्जेक्ट, अर्थ दूसरा ऑब्जेक्ट. सो अगर यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट होंगे तो वी कैन से दैट कि दिस ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस r, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम अर्थ के सरफेस से ही थ्रो करेंगे, वहीं से वो रिटर्न बैक होगा. क्लियर? अब जो अर्थ के सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है हम कह देते हैं r, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, जो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द अर्थ है. अब जो अर्थ है बेटा एक होलो स्फीयर है, आपको पता ही है.
क्लियर। उसका जो ये वाला पार्ट है ये आपको पता है सॉलिड है और ऊपर यहाँ पे है एटमॉस्फेयर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वी आर नियरली ऑन द रेडियस, कि हम रेडियस से हैं। और वी की जो ऑब्जेक्ट हम ज़्यादा ऊपर नहीं फेंक सकते, तो वी कैन से दैट कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है दैट इज नियर अबाउट द, और जो ऑब्जेक्ट है वो नियर अबाउट कहीं ना कहीं रेडियस के ही गया है। सो अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल एम है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, तो यहाँ पे बनता है एक फोर्स, जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिप्रेजेंट बाय एफ एंड दिस फोर्स कैन बी रिटन एज जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो वी नो दैट from second law of motion कि जो आपका F था that is equal to ma, और यहाँ पे a थी जो वो थी एक्सेलरेशन। अगर a यहाँ पे एक्सेलरेशन थी, इस केस में जो बॉडी की एक्सेलरेशन है उसको हम लिख रहे हैं g के साथ। सो दिस विल बिकम mg। सो दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। सो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, दोनों ही फोर्स हैं। तो अगर दोनों फोर्स हैं तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो व्हेन वी कंपेयर इट, जब इसको हम कंपेयर करेंगे तब आप क्या देखोगे, वी विल सी दैट कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। तो उस कंपैरिजन से हम यहाँ पे रिलेशन निकाल लेंगे बिटवीन g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो किस पे डिपेंड करती है। सो नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि mg कम्स आउट टू बी g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये स्मॉल m के साथ स्मॉल m आपका कैंसिल हो गया। सो द वैल्यू ऑफ g कम्स आउट टू बी gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब जो g है वो किस पे डिपेंड करता है, जो g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ये था मास ऑफ द अर्थ, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है और अर्थ की रेडियस पे। तो इसका मतलब ये है बेटा, फॉर every object which is moving toward earth of any mass have the same value of g। मीन्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की लिए वैल्यू है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो आपकी सेम होगी। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g। ये g की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है और जो g की वैल्यू है वो कितनी आएगी, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g फॉर द अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस के लिए g क्या होगा। सो वी नो दैट कि जो g है वो आपका है gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। तो अगर ये gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर है तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एवरी क्वांटिटी हेयर। सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ g इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड जो अर्थ का मास है दैट इज नियर अबाउट 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय रेडियस। सो रेडियस जो अर्थ की होती है वो 6400 किलोमीटर है। जब उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे नियर अबाउट इस कम्स आउट टू बी 6.4 इंटू 10⁻6 इस सारे का स्क्वायर। सो जब हम इस सभी वैल्यू को सोल्व करते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज वैल्यू, द वैल्यू ऑफ g कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम यूनिट है जो एक्सेलरेशन की होती है। अब यहाँ से पॉइंट ये समझना है आप लोगों ने कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हैवी है चाहे वो लाइटर है,
every object falling toward the earth's surface with same value of g and that g is comes out to be 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं g की वैल्यू मून के सरफेस के निकालता हूं वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ g फॉर मून सरफेस मीन्स ग्रेविटी ऑफ मून, वैल्यू ऑफ g फॉर द सरफेस ऑफ मून। अब मून के लिए वैल्यू क्या होगी, अगेन जी की जो वैल्यू है बेटा, अब यहां पे अर्थ का मास था, अर्थ की रेडियस थी, तो ये जो जी मून का होगा वो आपका जो डिपेंड करेगा आपका that value of g for moon depend on the capital G remain same. Here comes out to be the m means this is the mass of moon, clear, divide by r square. This r square is the radius of moon. तो जब हम सबको पुट करेंगे फिर से जो g है वो 6.67 इंटू 10⁻11 और जो आपका कैपिटल m मीन्स मास ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg और जो रेडियस है मून की वो नियर अबाउट आपकी है 1.75 इंटू 10⁻6। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी को पुट करने के बाद जो वैल्यू आई आपकी वो आ गई 1.6 इंटू 10 पर। तो दिस इज द ग्रेविटी ऑफ मून, ये मून के लिए ग्रेविटी थी और जो जी अर्थ का था दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन आएगी, तो इफ वी विल डिवाइड जी मून बाय जी अर्थ मीन्स ग्रेविटी ऑफ मून डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ, दिस इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। सो जो आपका कटिंग करने के बाद आएगा दिस इज कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 6 पॉइंट समथिंग। तो इसको हम अगर लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1/6। तो अगर मैं यहां से रिलेशन निकालता हूं कि जी ऑफ मून इज इक्वल टू दी 1/6 इंटू में जी ऑफ अर्थ, मीन्स जो अर्थ की ग्रेविटी है और जो मून की ग्रेविटी है दोनों में एक रिलेशन है कि जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 टाइम है। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन का आगे काफ़ी यूज़ है, इसको हमने अच्छे से समझना है, क्लियर। तो ये आपका टॉपिक था वैल्यू ऑफ जी फॉर द मून सरफेस। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आपका आएगा मास एंड द वेट, जो आपका लास्ट टॉपिक होगा। उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इस वीडियो को देख के अपनी समरी प्रिपेयर करनी है। आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, समरी को देखना है। समरी को देख के आपने आराम से सभी टॉपिक की समरी प्रिपेयर करनी है वीडियो देखने के बाद। और वीडियो को देखने के बाद एट द एंड अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्लियर। सो दिस इज योर टुडेज वर्क, सो कंप्लीट इट। वी विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो, मास एंड द वेट।